Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. This video is in the series of Computer Science class 11th Salt sample paper discussion, and today I am going to present its part 4 to all of you. So till part 3 children we have discussed the part A and part B section 1 till the first three parts we have discussed part A completely, and in the third part we had discussed section 1 of part B, 50% of that section. Okay, so as I told you in part 3 that section 1 of part B has 10 questions of 2 marks each, and they are numbered from question number 24 to 33 in the question paper, and these were the chapter wise number of questions that these are the chapter wise number of questions that are there in the sample paper. I've already covered the first 5 questions, and today I'm going to take up the next 5 questions and complete this section 1 of part B. So before you watch this part, please make sure that you have watched the previous 3 parts as well, and I'll provide the links in the description. So let's proceed to the remaining 5 questions of section 1 of part B. So children, see, we had discussed till question number 28 in the last video. Fine. So now I'm taking up question number 29, which is a very interesting question again. That what is an infinite loop? Give an example of infinite loop. Fine. So infinite loop, you can read in the answer. It refers to a situation where the loop condition never becomes false. So आपने देखा कि while loop होता है, it is I told you in the previous video कि वो उसे हम entry control loop क्यों कहते हैं, because the condition is checked in the beginning and then if the condition is true the loop body runs. But हमें loop के अंदर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि जिससे लूप कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स हो, या फिर कुछ ऐसे लूप्स हैं जिनकी कंडीशन मतलब लूप में हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जिससे वो लूप कभी ना कभी ब्रेक हो, कभी ना कभी एंड हो। और अगर ऐसा स्टेटमेंट नहीं है तो वो लूप कंडीशन फॉल्स नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, तो आपका लूप इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होता चला जाएगा और लूप बॉडी रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगी जब तक आप उस लूप को खुद से टर्मिनेट नहीं करेंगे, एक्सटर्नली टर्मिनेट नहीं करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट के थ्रू वो लूप टर्मिनेट नहीं होगा। सो लेट्स रीड, इनफाइनाइट लूप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर योर लूप कंडीशन नेवर becomes false, and when it never becomes false the program will keep on entering the loop body and keep repeating the same block of code again and again, and this loop will never end or terminate. So this is an infinite loop, and how we can create it using the while statement, let's see. I have taken various examples, आप एक भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट। मैं आपको उसको रन करके भी दिखाऊंगी। सो एग्जाम्पल 1 इज दिस वेरी पॉपुलर इनफाइनाइट लूप while true. सो while के आगे व्हेन यू गिव द कंडीशन दैट शुड बी ट्रू फॉर द लूप टू रन, ठीक है ना। सो अब हमने ट्रू को, एक कांस्टेंट ट्रू को ही यहाँ पर जो पाइथन का ट्रू कांस्टेंट है बुलियन वैल्यू वो ही मेंशन कर दिया, ट्रू इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन ट्रू। और आपने लूप के अंदर क्या लिखा, दैट दिस इज एन इनफाइनाइट लूप। नाउ सी ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, सो दिस लूप इज नेवर गोइंग टू टर्मिनेट। इससे अगर आपको टर्मिनेट करना होगा तो आपको अंदर लूप में कहीं ना कहीं ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर। ये जनरली वाइल ट्रू वाला जो हम लूप यूज करते हैं जब हम मेन्यू ड्रिवन कोड्स बनाते हैं। सो वी वांट द यूजर टू कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट द स्टेप्स ऑफ द मेन्यू टिल ही और शी वांट्स। तो जब हमें चाहिए कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो एग्जिट के साथ या लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक लगाते हैं। सो दिस इज एन द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट लूप while true, and any statements, यहाँ तो एक ही स्टेटमेंट है, any number of statements in the body of this while will continuously execute because हमने यहाँ पर कहीं ब्रेक यूज नहीं किया और ये ट्रू हमेशा ही ट्रू रहेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x इज इक्वल टू 1। सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल x एंड इनिशियलाइज्ड इट विद 1। ठीक, अब हमने कंडीशन क्या लगाई, while x इक्वल टू 1। ठीक है, सो x ऑलरेडी 1 है, ये ट्रू हो गया। x की वैल्यू यहाँ क्या, x किसे रेफर कर रहा है, 1 को, एंड 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस लूप इज ऑल्सो गोइंग टू एंडलेसली एग्जीक्यूट जब तक हम उसको खुद से एक्सटर्नली टर्मिनेट नहीं करेंगे। आपकी स्क्रिप्ट इस लूप को टर्मिनेट नहीं करेगी बिकॉज 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सो आप इसे कैसे भी कर सकते थे, x की किसी भी वैल्यू को उसी सेम वैल्यू से मैच करो। x 5 होता
तो आपका एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है while x equal to 5, while x equal to 2 अगर आपने x को 2 लिया हुआ है. This is again an example of an infinite loop which is actually lacking any such statement which will make this loop terminate at one point or the other. Next example 3 is a loop that is missing the update statement for a loop variable. Now this n, the variable n, it has been initialized with 1. फाइन. अब हमने कंडीशन लगाई while n लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है. सो ये ट्रू है. इनिशियल कंडीशन 1 इज लेस देन 10, n प्रिंट हुआ, दैट इज 1 प्रिंट हो गया. अब क्या हुआ, n को आपने अपडेट नहीं किया, यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट मिस कर दिया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन द लूप विल कंडीशन विल बी चेक्ड. n 1 ही है, n 1 ही रहेगा क्योंकि आप n को कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहे. So 1 will always remain less than 10. So again this loop body 1 को प्रिंट करती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि 1 हमेशा 10 से छोटा है. इसका सही करने का तरीका क्या था, आप यहाँ लिखते n is equal to n plus 1, या n को किसी भी तरीके से इंक्रीमेंट करते करते उस स्टेज पर ले आते कि कभी ना कभी n 10 से एक्सीड हो जाता, तब आपका ये लूप टर्मिनेट हो पाता. ठीक है. सो मिसिंग अपडेट स्टेटमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू रिजल्ट इनटू एन इनफाइनाइट लूप. बट अब यहाँ देखो आप, हमने यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट भी दिया है, लूप इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, कंडीशन भी दिया है और अपडेट स्टेटमेंट भी दिया है, फिर भी इनफाइनाइट लूप क्यों बनता है वो देखते हैं. सी बेटा, ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए हैं, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आपकी लूप स्टार्टिंग वैल्यू जो है, दैट इज द लोअर बाउंड फ्रॉम द the initial value of the loop variable is 1 and its terminal value is 10, that is you are moving from a lower value to a higher value. तो उस केस में आपको जो लूप का इंक्रीमेंट करना चाहिए, वो लूप को वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना चाहिए, ना कि डिक्रीमेंट. तो अब क्या होगा, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, लूप में आएगा, 1 प्रिंट हुआ. n को आपने इसको 1 से डिक्रीमेंट कर दिया, अब n क्या हो गया, 0. 0 इज लेस देन 10, ये प्रिंट होगा. अब क्योंकि n पीछे की तरफ जा रहा है, n डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब वो हमेशा क्या रहेगा, 10 से छोटा. तो ये लूप आपका चलता ही रहेगा, इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होता रहेगा. इसको ठीक करने का क्या तरीका था, यहाँ आप n इज इक्वल टू n प्लस 1 लिखते. तो n प्लस 1 लिखने से क्या होता कि एक स्टेज पर जब 10 होती लूप वेरिएबल की वैल्यू, ठीक, तो ये लूप प्रिंट करता, n को प्रिंट करता और n इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाता, ये लूप कंडीशन हो जाती फॉल्स और आपका लूप टर्मिनेट हो जाता. सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू अ हायर वैल्यू, बेयर इट इन माइंड कि आपको इंक्रीमेंट करना है. अब आप ये जानने के बाद जल्दी से मुझे बता पाओगे कि एग्जाम्पल 5 में भी इनफाइनाइट लूप क्यों क्रिएट हो रहा है. देखो, जब आप काउंट डाउन करते हो तो कैसे करते हो, 10 9 8 ऐसे करके काउंट डाउन करते हो ना. काउंट डाउन का मतलब आपने यहाँ क्या लिखा, 11 से इंक्रीमेंट किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन लगाई 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू है, ठीक, 11 प्रिंट हुआ. अब n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर दिया. यहाँ आपको क्या करना चाहिए था, जैसे काउंटडाउन के लिए क्या करते, डिक्रीमेंट करना चाहिए था यहाँ पर, बट यू हैव नॉट डिक्रीमेंटेड, यू हैव इंक्रीमेंटेड. अब n क्या हो जाएगा, 12 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, ठीक, लूप चलता रहेगा. फिर 13 हो जाएगा, 13 भी 1 से बड़ा, क्योंकि जो आपकी जिस वैल्यू से आप उसको चेक कर रहे हो वो हमेशा छोटी ही पाई जाएगी n की वैल्यू से. क्यों? क्योंकि आपने n को डिक्रीमेंट करने की जगह इंक्रीमेंट कर दिया. सो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे इनफाइनाइट लूप के. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम अ हायर वैल्यू टू अ लोअर वैल्यू, तो आप डिक्रीमेंट करो. व्हेन यू मूव फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू अ हायर वैल्यू, आप इंक्रीमेंट करो. और जब आप ठीक से लिख रहे हो तो लूप को, वेरिएबल को अपडेट जरूर करो. और जब आप इस तरीके के लूप्स बना रहे हो एग्जाम्पल 1 और 2 के इस तरह, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करो, ठीक है, ताकि आपका लूप प्रॉपर आइटरेशंस, फिक्स्ड आइटरेशंस के बाद खत्म हो. और अगर नहीं खत्म हो रहा, आपने इनमें से कोई भी एक लॉजिकल मिस्टेक कर दी है या कोई चीज स्किप कर दी है, तो आपका लूप इनफाइनाइट हो जाएगा. और उसको आप ब्रेक कैसे करोगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाकर, कंट्रोल एंड सी टुगेदर, व्हेन यू प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड, आपका ये कंट्रोल इनफाइनाइट लूप एंड होगा. ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं इस कोड को रन करती हूँ. पहला लूप ही हमारा देखो चलता जा रहा है, इट्स रनिंग ऑन इनफाइनाइटली. तो मैं कंट्रोल सी अगर कीबोर्ड से दबाती हूँ, तो कीबोर्ड इंटरप्ट टेक्स प्लेस एंड देन माय लूप टर्मिनेट्स. फाइन. सो मुझे एक्सटर्नली इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी. Fine. So I hope this question is clear to you. Let's proceed to question number 30, which is from Society, Law and Ethics. And it says,
राइट 4 टिप्स फॉर सेफली यूजिंग द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मैंने बहुत सारी टिप्स आपके लिए यहाँ लिखी हैं और आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हो, हाफ मार्क ईच कैरी करेंगी ये। तो बेटा देखो, लर्निंग भी आपको सीएस में करनी है, कंप्यूटर सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के लिए लर्निंग करनी है, और आपको सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के लिए भी लर्निंग करनी है। कुछ चीज़ें इसमें बहुत जनरल हैं, सो यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, so you can write it down in your own words also. Every relevant point will be considered for marks. So be careful. Social networking sites हैं, you all are regular users of Facebook, Instagram, Twitter, ठीक है। So what precautionary measures, या what because you are using these sites to post your this thing, information about your life, post information about your interests. So आप इनको किस तरीके से सेफली यूज कर सकते हो, सो दैट इन नन ऑफ द सेंसेस यू आर हार्म्ड, ये इसमें बताया गया है। So first point says be careful before accepting friend या follow request, because you should not accept friend request or follow request of any person whom you do not know. फाइन। सो जिसे आप ट्रस्ट करते हो या लाइफ में पहचानते हो, अपनी रियल लाइफ में पहचानते हो, उन्हीं को एक्सेप्ट करो और उनसे कंफर्म करके एक्सेप्ट करो, बिकॉज समटाइम्स वी हैव फेक प्रोफाइल्स ऑल्सो, that people disguise themselves as somebody whom you know, and then they phishing, जिसका एक एग्जांपल है, वो आपको भेजते हैं और आपको लगता है वो सही यूजर्स हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हो। सो बी केयरफुल व्हेन यू एक्सेप्ट फ्रेंड और फॉलो रिक्वेस्ट। बी केयरफुल व्हाइल यू शेयर। सो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप अपनी लाइफ की हैपनिंग्स को शेयर करते हो, दैट इज गुड, फाइन। लेकिन कभी भी पासवर्ड्स हो गए या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है विच इज एक्सट्रीमली personal, or your financial information or your location, avoid sharing that. Never share your passwords, fine. और अपनी साइट पर पासवर्ड्स भी ऐसे रखो कि कोई उनको इजीली गेस ना कर पाए। मेक योर पासवर्ड इन सच अ मैनर कि दे शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ small letters, upper letters, digits, special symbols, so difficult to guess. Strong passwords कहते हैं ऐसे passwords को, उन्हें यूज करो। Then privacy always matters. हमेशा अपनी privacy settings के लिए careful हो. What is it that you want to become public, and what can be seen by everyone, even if that person is your friend, is not your friend. What is only to be seen by your friends, क्या आप बिल्कुल किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। सो ऑल दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर अ यूजर। सो आप अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को ज़रूर से देखो, चेक करो, और कुछ भी पोस्ट करने से पहले ध्यान दो, क्योंकि वंस इट्स पोस्टेड एंड it is going to be public instantly. So what is private should not be posted at all, and privacy settings should be taken into consideration. Then respect privacy of others. आपकी फ्रेंड की कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको टैग करने से पहले, शेयर करने से पहले उससे परमिशन। डू नॉट you are using your account to share something about yourself. If you are sharing something about your friends, it should be with due permission from them. Okay, then keep your softwares, browsers, your antiviruses, everything up to date, because ये हमारे सॉफ्टवेयर जब अप टू डेट होते हैं तो इनके में कोई लूप होल्स नहीं होते। जब लूप होल्स नहीं होते तो सिक्योरिटी ब्रीचेस नहीं होती, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। सो ऑलवेज कीप योर ब्राउजर्स, योर सॉफ्टवेयर, एनी ऐप दैट यू आर यूजिंग अप टू डेट, फाइन। उसका रेगुलर अपडेट लो। देन स्पैम्स को के लिए अवेयर रहो। स्पैम यू ऑल नोज, अनसॉलिसिटेड, अनवांटेड जंक ईमेल, फाइन। सो किसी भी स्पैम मेल को रिप्लाई मत करो, किसी भी अननोन यूजर की या मेल को रिप्लाई मत करो, किसी भी अननोन यूजर की आई मेल में गिवन हाइपर लिंक्स पर क्लिक मत करो, ठीक। साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट। सपोज you are bullied by somebody over social media, or you are harassed, you are stalked by somebody over social media, then please file a complaint अंडर IT एक्ट। साइबर सेल में आप IT एक्ट के अंडर आप अपनी कंप्लेंट फाइल करो। डू नॉट कीप ऑन टॉलरेटिंग इट, बिकॉज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत दूर तक जाता है। सो इन केस यू आर अ विक्टिम ऑफ एनी टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम, you should immediately bring this thing into the knowledge of the
cyber security cell people and you can lodge a complaint under IT Act. Then keep your friends close and strangers at an arm's length. Obviously फ्रेंड्स आपके क्लोज सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं उनको क्लोज रखिए, उनके साथ शेयर कीजिए कुछ भी, बट स्ट्रेंजर्स को कभी भी एज फ्रेंड्स एक्सेप्ट मत कीजिए, ठीक. Then check control your reaction to trolls. Again, when suppose you are trolled for something, do not immediately react or do not react angrily. Control your temper and क्योंकि ट्रोलिंग में ट्रोलर का जो क्या होता है, इमीडिएट इंटेंशन होता है कि आप रिएक्ट करो और आप रिएक्ट करते वक्त कुछ गलत कर जाओगे. सो डोंट डू दैट, स्टे काम एंड ब्लॉक द और रिपोर्ट अबाउट दोस ट्रोल्स. फाइन. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30. नाउ लेट्स सी, राइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अपाचे लाइसेंस. लाइसेंसिंग आपके सिलेबस में है, उसका एक पार्ट है अपाचे लाइसेंस. अपाचे लाइसेंस का ये आपको सेलिएंट फीचर्स मांगे गए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ नोट में दिया है दैट अपाचे लाइसेंस इज अ परमिसिव free software license written by Apache Software Foundation which allows the user to use the software for any purpose such as distributing it, modifying it, distribute the modified versions of the software under the license terms and without concern for any fee or royalty. So जितने भी Apache Software Foundations के projects होते हैं वो Apache license के अंदर आते हैं और वो Apache license आपको allow करता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को किसी भी तरीके से allow the users to use their software for any purpose. So उसके salient features यहाँ बताए गए हैं, ये भी important है. तो rights are never ending, पहले बोला है कि once you have got the rights under Apache license, they are lifelong, you can use them forever. Fine. Then मतलब उसके बाद है वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी ऑफ राइट्स. सो ज़रूरी नहीं कि आप एक कंट्री में रहकर अगर आपको जो राइट्स मिलते हैं वो उसी कंट्री पे एप्लीकेबल होंगे, वो ग्लोबली एप्लीकेबल होंगे, वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड राइट्स होंगे. तो दे आर बीइंग ग्रांटेड टू, इफ राइट्स आर ग्रांटेड टू वन कंट्री then they are automatically considered as granted to all countries. Then rights for no fee or royalty, जैसे नीचे भी मैंने बोला without any concern for fee or royalty, आपको कुछ भी जो है एप्लीकेबल नहीं है, ना ही कोई फी एप्लीकेबल है, ना ही कोई रॉयल्टी एप्लीकेबल है. डायरेक्ट या फिर यूसेज के बेसिस पर भी कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, ना ही फी ना रॉयल्टी. Then rights are irrevocable. So no one can ever say to you that your derivative, the code that was licensed under this license, can't be used anymore. ठीक है, तो मतलब once the rights are given, they cannot be revoked. Fine. So ये लाइसेंस एक बार मिल गया तो आपको ये कोई भी नहीं कहेगा कि आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड नहीं है, वो यूज नहीं हो सकता, राइट्स रिवोक नहीं हो सकते. वंस दे आर गिवन, वंस दे आर ग्रांटेड, they are granted. So this was about the salient features of Apache license. Let's move to another question from SLE, that is, how is accidental plagiarism different from deliberate plagiarism? So you all know plagiarism is, you're taking somebody's work and passing it off as your own. किसी और के काम को आप अपने नाम से सेल कर रहे हो, दे रहे हो कि ये मैंने किया है, जबकि वो किसी और ने किया है, आपने परमिशन नहीं ली है. Simply you are passing the work done by somebody else, the intellectual property of somebody else, and you're passing it on your own as your own. ये plagiarism है. और plagiarism बेटा दो तरीके का होता है, one is accidental और unintentional and another one is deliberate और intentional. So accidental से समझ में आ रहा है कि केयरलेस पैराफ्रेजिंग करी. पैराफ्रेजिंग मतलब किसी का डॉक्यूमेंट कॉपी किया, उसके वर्ड्स को इधर उधर करके चेंज किया और उसको अपना वर्क की तरह प्रेजेंट कर देना, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन करी साथ साथ, बस प्रेजेंट कर देना, दैट इज एक्सीडेंटल. फाइन. और डेलिबरेट क्या है? कॉपिंग समवन एल्स वर्क, कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट और एनी काइंड ऑफ मीडिया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, सब पूरा एज इट इज कॉपी किया, कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं समझी, एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट किया, एज इट इज किसी का भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मटेरियल लिया और उसको पब्लिश कर दिया वेब पर, ना उस पर्सन से पूछना जरूरी समझा, ना बताना जरूरी समझा, एंड यू आर पासिंग ऑन दी जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग एंड पासिंग इट ऑन एज योर ओन वर्क, दो वो वर्क किसी और का है, इसको आपने क्या बोला? डेलिबरेट प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म इज साइबर ऑफेंस, इसको आपको नहीं करना चाहिए. और अगर आप कुछ भी करें, अगर आप किसी के काम को लेते भी हैं ना बेटा, तो आप लीजिए, उसको रेफर कीजिए.
कि हाँ उसको प्रॉपर क्रेडिट दीजिए उस पर्सन को कि आपने उसके काम को लिया है और आपने उसको रेफर किया है, ठीक है ना। सो दिस इज इट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस part 1 of section B, sorry section 1 of part B, find and write the output of the following code। अब ये आउटपुट क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ठीक है ना। सो इस आउटपुट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया सो दैट यू नो इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। Let me see how much I can enlarge it so that you know the diagram is clearly to you. So clear to you. Let's see. देखो एक string है, class 11th annual exam 2020-2021. Name is S and we are printing it. ठीक, print कर दिया। तो पहला line of output तो यही हो गया कि ये string as it is print हो जाएगी। पहला output इसका क्या होगा कि ये string as it is print हो जाएगी, ठीक। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर कि print S, ठीक। सो प्रिंट होने के बाद आपने एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई R, डबल कोट्स लगाए हुए विदाउट एनी स्पेस इन द कोट्स, सो इट्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग। और अब आप ये R जो स्ट्रिंग है ना वो S की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो R इज इनिशियली ब्लैंक बट यू आर यूजिंग द कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग S टू कंस्ट्रक्ट R। तो वही प्रोसीजर मैंने यहाँ समझाया है आपको। इसका आउटपुट पहली लाइन तो आपको पता है क्या होगी, क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2020-2021, ये प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रिंट करेगा। अब जब R प्रिंट होगा वो क्या है, अभी तो ब्लैंक है ना, लेकिन बीच में उसको ये बनाया गया है। कैसे बनाया है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो लेट अस सी। देखो फॉर आई एन एस के कंटेंट्स मैंने यहाँ लिख दी है। और सबसे पहले आप जब भी स्ट्रिंग बेस्ड आउटपुट आए आप बहुत ध्यान से देखना कि आप पूरी स्ट्रिंग को इस तरह से रफ में ब्लॉक्स में लिख लो, ठीक है। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग कर लो। सो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ 30 लेंथ, फाइन। सो इंडेक्सिंग ऑब्वियसली कहाँ से होगी, 0 से 29। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। केयरफुली कॉपी करना, एक भी लेटर अगर आप गलत कॉपी कर लोगे द होल थिंग इज गोइंग टू स्पॉइल। ओके, सो कॉपी इट केयरफुली, फाइन। नाउ अब आर हमारा खाली था, कैसे बना है, ये कैसे बना आर वो देखते हैं। फॉर आई इन एस, यानी एस में से एक एक कैरेक्टर आई में आता चला जाएगा। ये वैल्यू बेस्ड लूप है। एवरी कैरेक्टर ऑफ आई विल बी ब्रॉट, सॉरी एस विल बी ब्रॉट इनटू आई, देन दिस ith कैरेक्टर दैट हैज बीन फेच्ड फ्रॉम एस विल बी चेक्ड एंड अकॉर्डिंगली आर विल बी फॉर्म्ड। सो हमने पहला कंडीशन क्या लगाया है, अगर जो कैरेक्टर एस में से आया है वो अपर केस में है, ठीक है। सो आर में एग्जिस्टिंग आर के आगे वो ith कैरेक्टर लोअर केस में कन्वर्ट होके ऐड हो जाए। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इज अपर करता है चेक कि लेटर अपर केस में है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अपर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इज अपर इन अपर में क्या डिफरेंस है, इज अपर चेक्स एंड अपर कन्वर्ट्स। इज लोअर चेक्स फॉर लोअर केस वेयर एज लोअर कन्वर्ट्स टू लोअर केस। तो ये ध्यान रखना, इज डिजिट चेक्स फॉर डिजिट, ठीक है। और अब ये सारे फंक्शंस जो इसमें यूज हुए हैं वो देखते हैं। इफ आई डॉट इज अपर, तो पहले क्लास 11th का सी कैपिटल था, अगर वो कैपिटल तो हमें क्या करना है, आर में उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके ऐड कर देना। सो आर में इस सी का लोअर केस आ गया, स्मॉल सी, ठीक। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या उठा, स्मॉल एल। स्मॉल एल के लिए इज अपर कंडीशन फॉल्स हुई, इज लोअर ट्रू हो गई। तो तब हम क्या कर रहे हैं, आई डॉट अपर, यानी कि इस स्मॉल एल को हमने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट करके एग्जिस्टिंग आर में ऑलरेडी सी था उसके आगे जोड़ दिया। सो आर इज इक्वल टू आर प्लस लोअर, आर इज इक्वल टू आर प्लस अपर, मतलब ith कैरेक्टर को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर करके हम जोड़ते चल जाएंगे। अब आप बहुत जल्दी बता दोगे नेक्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ए उठेगा क्योंकि वो लोअर केस में है। पहली कंडीशन फॉल्स होती है, सेकंड ट्रू होती है। इज लोअर ट्रू होने का मतलब उसको अपर केस में कन्वर्ट करके आर में पहुंचा देंगे। तो सिमिलरली स्मॉल एस विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एस एडेड टू आर, स्मॉल एस अगेन विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल एस एडेड टू आर। अब आती है स्पेस। स्पेस के लिए देखो बेटा एल्स पार्ट में जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ना तो स्पेस इज अपर से मैच हो रहा है, ना इज लोअर से मैच हो रहा है, ना इज डिजिट से मैच हो रहा है, ठीक है। सो एल्स पार्ट में आएगा और एज इट इज स्पेस दूसरी स्ट्रिंग में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। सो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो कि ये कोड करके आ रहा है, लेटर को चेक कर रहा है कि अगर वो इज अपर में है तो वो आर में लोअर केस में कन्वर्ट होकर ऐड होगा, अगर वो लोअर केस में है तो वो अपर केस में कन्वर्ट होकर ऐड होगा, और अगर वो लेटर डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे,
ठीक है, उसमें 1 को जोड़ेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया प्लस के लिए दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के होने चाहिए, सेम डेटा टाइप के। आई मेरा लेटर है, 1 मेरा डिजिट है। अगर आप i+1 लिखोगे तो एरर आ जाएगा, मिसमैच्ड अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, ठीक है ना, टाइप एरर आ जाएगी। तो आपने आई को पहले क्या किया, टेम्परली इंट में कन्वर्ट किया, 1 जोड़ा। अब क्योंकि आर में पहुंचाना है, आर एक स्ट्रिंग है, तो आर के साथ क्या कंकैटिनेट हो सकता है, एक स्ट्रिंग ही कंकैटिनेट हो सकती है। तो इस पूरी चीज के आउटपुट को आपने वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और आर में ऐड कर दिया, ठीक है ना। सो अगर आर इनमें से आई इनमें से ना कुछ भी नहीं है, तो जो भी आई की वैल्यू है वो एज इट इज आर में जाएगी। सो स्पेस के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी और स्पेस एज इट इज ऐड हो जाएगी। अब जल्दी से बताओ, अगला कैरेक्टर उठेगा कैपिटल एक्स, तो क्या होगा, स्मॉल एक्स में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल आई में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, स्पेस एज इट इज चली जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए में कन्वर्ट होकर जाएगा, स्मॉल एन एन यू ए एल अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अपर केसेस में कन्वर्ट होकर चले जाएंगे, स्पेस एज इट इज जाएगा, एग्जाम का कैपिटल ई स्मॉल ई बन जाएगा, छोटा एग्जाम कैपिटल एग्जाम बन जाएगा, स्मॉल स्पेस एज इट इज जाएगा। अब जब 2 आता है, बहुत ध्यान से देखो क्या होगा, इस डिजिट ट्रू हुआ क्योंकि इसका इज अपर फॉल्स था, इज लोअर इज डिजिट, तो 2 को हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, 2 को इंटीजर में कन्वर्ट किया, ठीक, वो हो गया इंटीजर बन गया, उसमें 1 जोड़ा, कितना हो गया 3, और 3 को वापस स्ट्रिंग बनाया और आर में जोड़ दिया, सो ये ऐसे आ गया, ठीक। ऐसे 0 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, 1 ऐड हुआ और वापस स्ट्रिंग बना के आर में डाल दिया, 2 + 1 3, 0 + 1 1। अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते, r += i+1 लिखते तो एरर आती, क्यों, क्योंकि i कैरेक्टर है और 1 इंटीजर है, इसलिए i को पहले इंटीजर बनाया, 1 में ऐड करके जो रिजल्ट आया उसे स्ट्रिंग इसलिए बनाया क्योंकि वो एक स्ट्रिंग में ऐड होना है, ठीक है। अब हाइफन जो था वो एज इट इज आया, फिर 2 becomes 3, 0 becomes 1, 2 becomes 3, 1 becomes 2। So, अब जब आप R प्रिंट करोगे स्क्रीन पर तो आपका आउटपुट आएगा ये, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, पहली लाइन तो यही आएगी एज इट इज, ठीक है, आप इसी में से कॉपी कर लीजिएगा, यही एज इट इज ये लाइन आएगी बेटा, ठीक। और दूसरी लाइन आए जब आप R प्रिंट कराओगे वो ये वाली लाइन आएगी। ऐसे ब्लॉक्स में मत लिखना, डायरेक्ट आंसर देना आप, ठीक है ना, गिव द डायरेक्ट आंसर, ब्लॉक्स में इसको मत लिखिएगा। सो इट इज, आई जस्ट चेक, आई हैव I'll just check if I can show you the output. Yeah, this is it. Let's run this, and this is the output that you're getting. So I'll do one thing, I'll paste this output as the answer in your Word file. So this is the answer for your question. This is the output you're going to get. ठीक है, पहली स्ट्रिंग एज इट इज और दूसरी स्ट्रिंग चेंज होके आपकी आ गई। फाइन, सो विद दिस चिल्ड्रन आई एंड विद section 1 of part B. I'll be back with section 2 of part B very soon. section 2 में जो है, section 2 of part B में हम 3 marks के 4 questions discuss करेंगे, जिसमें 2 questions में internal choices होंगी. So till we meet again children, happy learning, God bless you, do keep liking and sharing and commenting on the video just in case you feel like, because it will motivate me. एंड दोनों अब तक के 4 पार्ट्स को आप देखना, एंड पार्ट 5 के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ. सो बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू.